Spring, what is a spring? Spring is basically an object like this. What? Okay. Is an object like this. Okay. And it's like this. And what happens is that it has, you know what? You compress it. If you compress it, you know, spring, like played with springs, right? It'll come back to its, like, it'll go like this, oscillate. If you extend it also, then also it will oscillate. Okay. So like technically there is something called a natural length of spring. Okay. There's some natural length. Okay. If you extend it more than the natural length, then also it will, what it will happen, it will try to come back to its natural length. Okay. If you compress it, so you are making the length less than the natural length. If you extend it, you are making the length more than the natural length. Okay. So we define something. So suppose, let's say this is the natural length, and the natural length, we, let's say it is L naught. Okay. L naught, or just say simply L. Okay. Fine. And if you extend it, like I said, extend it and extend it, and then we have a term which is called extension. Okay. And extension is the x, the delta x, or the x. Okay. So it should be delta x, but we'll just call it x. Okay. If x is, now very simple, if x is positive, it means this was a case of extension, right? Spring is extension, right? That means the length of the spring is more than L naught. Yes or no? Right? L is the real time length of the spring, and L naught is the natural length. Understood? Tanishka and Dhwani and Aditi, are you getting this? Yeah. Okay. And if x is negative, this implies it was a case of compression. Okay. Compression, and the real time length was less than L naught. Okay. Very simple. Okay. Now if x is equal to 0, that means length is equal to, yeah, the spring is at natural length. It is neither extended nor compressed. Okay. ठीक है, simple है. अब देखो. Now we have different kinds of springs. What spring you have is called a linear spring in your course. Linear spring, even if they just call spring, it is by default assumed it is linear spring. Linear spring में होता है the force developed in the spring, it is also called restoring, F restoring. I'll tell you why it is called restoring. Is proportional to the x. Okay, the restoring force is proportional to x. So we will try to understand what is restoring. Okay, so suppose there is a wall and you have attached one spring to it. Okay, and then at the end of the spring you have attached a mass m. Okay, fine. If the spring length L is equal to L naught, the mass will stay here only, right? Okay, समझ में आया ना? Now what you do is you take up this block. Sorry. Take up this, yeah, and try to move it to the right. ठीक है. So वो थोड़ा सा गलती हो गई, वो ये भी देखो आ गया है. ठीक है. But this is the block, and this block what I'm doing, I'm trying to move it to the right. So what I'm doing is मैं L को क्या कर रहा हूँ, L नॉट से बड़ा कर रहा हूँ. ठीक है. स्प्रिंग तो लगा रहेगा इसमें ना, ऐसे स्प्रिंग तो लगा रहेगा. ठीक है. क्या होगा, what will happen? It is in a case of extension, right? So what will happen? The spring will put a restoring force on this block. Okay, this mass m pe, it will put a restoring force to come back. Fine. And this force is equal to how much? It is equal to, this force will be proportional to x. If we have displaced it, suppose let's say length, original length L naught was 100 centimeter. Okay, fine. And there is something, so F is proportional to x, right? F is equal to kx. F is equal to kx. K is called constant, spring constant. Okay, K is called spring constant. Spring constant. ठीक है. फोर्स का यूनिट क्या होता है? एक्स का यूनिट क्या होता है? मीटर. के का यूनिट क्या है? न्यूटन. के इज न्यूटन पर मीटर. ओके, के इज द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर. अब देखो व्हाट इज अ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड के. के इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग. के इज अ spring property. Okay,
So once you have taken a spring, उसका k कितना है, मान लो एक k स्प्रिंग का है 10 न्यूटन पर मीटर, ओके 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक। एक मान लो इस स्प्रिंग का k is 10 न्यूटन पर मीटर। नाउ स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ लेट्स से इट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक। और इस पे मास लगाए, व्हाट यू डू इज you displace this mass to the right such that this length now becomes 110 centimeter, okay। मतलब basically your x is how much, 10 centimeter। 10 centimeter है तो मीटर में कितना है, 0.1 मीटर, ठीक है। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाता है k इंटू एक्स, कितना फोर्स लगाएगा, k का वैल्यू है 10, यहाँ ये वाला 10, समझ में आया ना, k न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स का वैल्यू कितना है अभी 0.1, तो कितना फोर्स लगाएगा 1 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन बैक करने के लिए, समझ में आया, अंडरस्टूड, ठीक। इफ योर डिस्प्लेसमेंट वाज नॉट 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर था ना, इफ इट वाज 20 सेंटीमीटर तो ब्लॉक इधर होता, तब एक्स कितना होता 0.2, तो एफ कितना होता तब 2 न्यूटन, समझ में आया, तब 2 न्यूटन लगता है, ठीक है। जितना, हाँ पुशिंग, हाँ, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन, द करेक्ट इक्वेशन इज माइनस के एक्स वाई सी। यू आर, देखो, सी इफ दिस इज अ नंबर लाइन एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 0, if you go to the right your x is positive, displacement is positive, right? If you go to the left displacement is negative। यहाँ पे आप 0 ये है, x equal to 0 ये है ना, यहाँ से राइट साइड जा रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो x is positive, x is positive, बट फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है, तो फोर्स इज नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो फोर्स नेगेटिव क्वांटिटी है, x पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट, k तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए you have to put a negative sign here, okay, understood, because f is in direction opposite to minus 1 newton, yes, f is minus 1 newton, yes, because x was plus 0.1 meter, you are going to the right, okay। और अगर उल्टा होता है, तुम पीछे जाते हो, ब्लॉक को ना यहाँ कर देते हो 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट कर देते हो, ठीक है। if you compress the spring so that the block is 10 centimeter to the left of natural position, तो अभी लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना है, टोटल क्या होता है 90 सेंटीमीटर, राइट, समझ में आया ना। स्प्रिंग, do you guys understand, spring is now 90 centimeter in length, its natural length was 100 centimeter, so it is 10 centimeter compressed, right? So because f is minus kx and x is negative here, so f will be positive, that means the force is to the right, understood, ठीक है। so always f is opposite in direction of x, ये लिख लो, ऐसा नहीं कि f नेगेटिव है, f क्या है, ऑपोजिट है x के, तो अगर x पॉजिटिव है तो f नेगेटिव है, if x is negative then f is positive, okay, opposite to displacement, the direction of force is opposite to direction of displacement। ये कौन सा force, who is applying this force, the spring on the block, it is important, that's why it's called restoring force, because it always tries to restores, if the spring is at natural length this force is not there because it's already restored, okay, fine। now I'm giving you a k value, you tell me, and some displacement values, you tell me if k is 200 newton per meter, fine, find the value of f if, find f if first, अच्छा, और L नॉट है ना, L नॉट वो है, L नॉट नेचुरल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक। और मैं बोलता हूं कि मैंने डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, तो डायग्राम में कैसा है, सॉरी Sir, is L not the natural length or L the natural length? you can, your wish, In this question I meant. this question L not, in this question L not, okay। now this black line is the natural length line, okay। जो नहीं, क्वेश्चन कैसे दूं मेरे को, एक मिनट सोचने दो। So in this case, the length of spring is 150 centimeter. You have to find the force, okay?
Find the force also and show its direction also. ठीक? Question 2. Yes, F and its direction. पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है. In third, fourth question, I have not made the diagram. Okay. F equal to kx. X is the displacement around the कितना आप दूर हो नेचुरल लेंथ से. पहला क्वेश्चन है नेचुरल लेंथ से व्हाट इज द लेंथ नाउ. पहले क्वेश्चन में लेंथ कितनी है स्प्रिंग की? क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो. पहला क्वेश्चन कहाँ है? पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें लेंथ कितनी है स्प्रिंग की? 150. नेचुरल लेंथ कितनी है स्प्रिंग की दे रखी है? नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है? नेचुरल लेंथ ये है ना. तो तुम एक्सटेंडेड हो कि कंप्रेस्ड हो? एक्सटेंड. कितना एक्सटेंडेड? 50. मतलब 50 टू द राइट करा है ब्लॉक को. x is plus 50. k का वैल्यू दे रखा है. स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट f equal to kx. बस डाल दो. That the spring applies on the block. F is the force that spring applies on the block. So will the first one be 100 meter? 200 into 0.5. Yes, 100 क्या बोला? न्यूटन. Newton, yeah. To the left पूरा बोलना है. Okay. 100 न्यूटन टू द लेफ्ट. ठीक है. हाँ, -100 न्यूटन. ठीक है. सेकंड वाले का कितना आंसर है? 0.3 into 200. Yes, 60 न्यूटन टू द राइट और प्लस 60 न्यूटन. You can't write -60. That is wrong because the natural length is 100 centimeter. The spring now length is 70 centimeter. That means that x is equal to -30 centimeter, which is -0.3 meter. Dhwani, are you getting this? Yeah. So x is equal for the second question, x is equal to -30 centimeter. Okay, एक minute. So -0.3 meter, and the force value will be plus second one 60 plus 60. No, are you I got 60 plus to the right. Yeah, correct. Vikram and Tanishq, have you got it? Yes, sir. ठीक है. x बोल दिया तो मतलब पोजीशन नहीं है. यहाँ पे एक्सटेंशन को x बोल रहे थे ना. यहाँ पे एक्सटेंशन को x बोला है डायरेक्टली, तो मतलब 80 पे गया एक्चुअली. When x is -20, you just put f equal to -kx. Just put value. इसका स्पीड बढ़ा दो, एक बार ओमेगा बढ़ा दो. इसका ओमेगा बढ़ा दो. हर्षल इधर बैठो. होपफुली हाँ, गुड. सेवेंटी सेंटीमीटर will be 0.7 मीटर. बट उसमें 70 सेंटीमीटर नहीं डालना, उसमें 30 सेंटीमीटर डालना है क्योंकि नेचुरल लेंथ 100 है ना. सेकंड केस में नेचुरल लेंथ इज 100 and your current length is 70 centimeter. हाँ, yeah, you tell जोर से all answers. First वाला -100 न्यूटन. Second is 60 Newton. Plus 60 न्यूटन. Very good. Third is plus 40 Newton. Third is plus 40 न्यूटन. Very good. Fourth is minus 80 Newton. Fourth is -80 न्यूटन. आ गया? ठीक है. ये समझ में आ गया सबको?
अब यहां देखो, ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक एम है, एंड we will try to you know see what is x. If the block is here, x is equal to 0. If the blocks move to the right, x is positive, और ऐसे जा रहे हैं तो x और बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो ना मैं क्या करता हूं, मैं ना x की कर, सपोज ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है, ठीक है। और इसके पीछे क्या है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, ठीक है। अभी मान लो कुछ तो k है, k लेट्स से 10 है, 10, ठीक है। तो f फॉर यहाँ के लिए f कितना आएगा, f इज इक्वल टू 0, यहाँ के लिए f कितना आएगा -10, यस और नो, बिकॉज f इज इक्वल टू -kx, याद रखो f इज इक्वल टू -kx, एंड इफ k इज इक्वल टू 10 देन दिस इज -10, दिस f इज इक्वल टू -20, ये वाला -30, ये +10 होगा, ये +20 और ये +30. डू यू गाइज अंडरस्टैंड दिस मच? If you plot x versus f, when x is 0, f is 0. When x is 1, f is -10. When x is 2, f is -20. And when x is 3, f is -30. When x is -1, f is 10. When x is -2, f is -20, right? So this will be a straight line like this, right? Understood? Sir, Uh-huh. when x is -2, it's +20, right? It is +20, yes. Okay. Okay. तो इसमें ना जैसे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट है 0,0, ये सर नो है कि नहीं? अरे बोलो भाई, जैसे 0,0, और जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो है -1, +10, ये सर नो। अभी तुमने स्ट्रेट लाइन शायद पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, स्लोप निकालते कैसे हैं, y2 - y1 by x2 - x1, तो y2 - y1 10 - 0, ये सर नो, by -1 - 0, तो इसका स्लोप आ गया -10, मतलब स्लोप एक्चुअली आया -k, स्लोप इसका आया -k। तुम ऐसे भी देख लो, f क्या है, f को ऐसे बोलो ये y है, क्या है y, तो y इक्वल टू mx का स्लोप क्या होता है, m, तो यहाँ पे f इक्वल टू -kx, तो स्लोप कितना होगा, -k, डायरेक्टली लिख लो, y इज इक्वल टू mx का स्लोप इज m। देखो फटाफट लिखो, ये पूरा जल्दी बनाओ फटाफट सब कुछ, थोड़ा इधर कर लो, चेहरे से घुमा लो, टीवी दिखे। One second. कल क्लास है मित्सरा, कल है, सबका है, कल आपको आना, कल सुबह सर नहीं आएंगे, सबका है, सबका रखूंगा, इनको भी बुलाऊंगा, इन सब सबको बुलाऊंगा, 12th ऑल्सो, 11th ऑल्सो, 10th ऑल्सो, 9th ऑल्सो। हाँ, अरे ये लोग खुद करेंगे काम, सब लोग खुद करेंगे, ठीक है, चारों आएंगे, ठीक है। आप हाँ 10 o'clock सबको बुलाऊंगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड, ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया नहीं है, f इज -kx, ठीक है। तो ये फोर्स वर्सेस किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट, लिखो, दिस इज अ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दिस इज अ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फटाफट लिखो, फटाफट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी अगर इतना पढ़ लिया है तो हम थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फटाफट लिखो, फटाफट, केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका मान लो मास जो है ना, वो अपने मास बोल कितना, 5 kg, मास 5 kg, के बोल
हाँ 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, कि 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, फाइन। अभी मैं ना किसी एक से पूछूंगा, विक्रम Yes, sir. इसको डिस्प्लेस कर दिया मैंने बाई x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कितना फोर्स लगेगा बैकवर्ड्स? तो एक सेकंड, के कितना है? 10। हाँ 3 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया, ब्लॉक इधर आ गया राइट साइड, कितना फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा? तनिष्क, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ऑल द थिंग्स? Yes, sir. ओके, Sir, force will be minus 0.3 Newton. minus 0.3 न्यूटन, let us check, minus, yeah, correct, 0.3, yes, yes, very good, f is minus 0.3, it is acting like this, 0.3 न्यूटन, ठीक है, ठीक है ना, क्या हो गया? हाँ, ठीक, ओके। अभी क्वेश्चन ये है, ब्लॉक का जब एफबीडी, जब वो यहाँ पर है, तब ब्लॉक के एफबीडी में सिर्फ एक आएगा नीचे M5G, यस और नो, और वो ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल। समझ में, ये एफबीडी बना लो यहाँ पे, व्हेन इट इज जस्ट हियर, व्हेन इट इज अ नेचुरल लेंथ, लिखते जा बेटा, तू बहुत कम लिख रहा है। हाँ, व्हेन द ब्लॉक इज एट नेचुरल लेंथ, उसका एफबीडी बनाओ, उसके एफबीडी बनाओगे, उसमें बस इतना लिखो, नीचे की तरफ 5G, ऊपर की तरफ नॉर्मल, एंड बिकॉज ऊपर ऊपर नीचे कुछ हो नहीं रहा, तो n इक्वल टू 5G, सो विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है, ये सर नो, सही है, जोर से बोल, n नॉर्मल, वो नॉर्मल नीचे कितना लगता है ये बताओ, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? अरे यार, ग्राउंड डाउन ग्रेविटी कितना लगता है? 5G, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, नहीं पता नॉर्मल कितना है, नहीं पता ना, तो बस इतना, n लिखा नीचे, ऊपर लिखा, n ऐसे लिखा ऊपर की तरफ, 5G नीचे की तरफ। Is the block having an acceleration in this direction? No. So these forces must balance, n equal to 5G. The normal reaction must be equal to 5G. क्या हो गया? It's not moving. Are balancing. Yes. ठीक है? Okay. Now my question is, देखो समझो इस बात को. If this is a smooth surface, okay, and you just pull this block here and leave it, what will happen? It will go like this. It will, okay, by the time it reaches here, what will happen? It has acquired some velocity. We will study how it moves in the next chapter. But you should understand by common sense that what happens, see, यहाँ पे इसका रेस्ट पे है ना, और इस पे फोर्स लग रहा है, yes or no? फिर क्या होगा, इसको खींचेगा ना ये ब्लॉक, स्प्रिंग ऐसे खींचेगा, तो ये इधर जाएगा, ऐसे एक पॉइंट के बाद इधर आएगा, राइट? सो इधर जब आएगा तब एक्सटेंशन स्प्रिंग का कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया ना, अभी समझ में आ रहा है ना? इट आफ्टर सम टाइम इट विल बी एट जस्ट 2 सेंटीमीटर अवे, देन द फोर्स विल बी 0.2 न्यूटन, यस और नो? सो फोर्स हैज डिक्रीज्ड, बट इट हैज, इतनी देर में क्या हुआ है, यहां से यहां आने में force was, some force were acting, right, which was 0.3 here, and then when it came, it became 0.2, so it reduced from 0.3 to 0.2 over a period of 1 centimeter, over a distance of 1 centimeter. So there is a force which is applied with some distance. So क्या हुआ, वर्क हुआ है, इस पे क्या हुआ है, वर्क। अब अगर वर्क हुआ ना, तो क्या इसका इंक्रीज होना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, यहाँ पे जब आएगा ना तो स्पीड होगी इसके पास, फिर जब यहाँ आएगा और स्पीड होगी, और स्पीड होगी, जब यहाँ होगा आएगा ना तो मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर ओवरशूट कर जाएगा, समझ में आया? और होता क्या एक्चुअली, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, इट विल जस्ट गो टू x इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड? जितना तुमने खींचा था ना इस तरफ, दैट सेम अमाउंट विल गो बैक, एंड देन व्हाट विल हैपेंस, ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर इधर से इधर ऐसे आ जाता है, फिर इधर से ऐसे आ जाता है, फिर इधर से ऐसे आ जाता है, ये कंटिन्यू पर हमेशा होता रहेगा, परपेचुअली, अगर कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है तो। पर एक्चुअल केस में फ्रिक्शन होता है कहीं ना कहीं, तो रुक जाता है, बट ऐसे 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 बटरफ्लाई जैसा घूमता रहेगा, ठीक है? इसको SHM बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक motion. Have you understood that why it will not stop? Because there is no friction. Yes, correct. Have you understood why it goes to the other side? Yes, why? Because the moment it crosses this, it still has some velocity. Okay, समझ में आया ना? ये सबको समझ में आया? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? अंडरस्टूड? इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना है? 0. इस पॉइंट पे कितना है? देखो तो रहना, इस पॉइंट पे कितना है स्पीड? 0. इस पॉइंट पे कितना है? लेफ्ट, देखो ये राइट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है ना, इस पे स्पीड 0 है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे स्पीड कितना है? 0. तभी तो वो एक्सट्रीम है ना, वहां पर जाके रुक गया और फिर वापस भागा। समझ में आया? तो राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, और इसको क्या बोलते हैं? मीन, नहीं, ये इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड इज मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? स्पीड इज 0। यस और नो? स्पीड 0 यहाँ भी है और यहाँ भी है। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस मच? यस, ठीक है, लिख लो इतना फटाफट। Sir, simple harmonic motion ka what is the definition? Oh, I'm not giving you yet. Okay. No, but like you explained this, right? So how do I write it? Oh, you can just write that it goes to the right extreme, it goes to the left extreme, and moves to and fro in between. Okay. What? It moves to and fro between left and right extremes. That's it. Okay. जब से ये डीएम सर ने मुझे फिजिक्स बताया है वो ऑसिलेटरी मोशन और एनालिटिक मोशन के तो वो हिंदी में बताए थे आइया भैया बिस्ते सैया आइया भैया स्ट्रिप पोजीशन को इलेक्टर स्ट्रिप पोजीशन ये तो सर अगर नहीं याद हो रहा तुमको, भैया भैया बीच में सैया, ठीक है, ये लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा, और इस वो थोड़ा आगे का पार्ट है एसएचएम, तो इसलिए पूरा ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो, अगर स्मूथ है और यहाँ पे इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो ब्लॉक लेफ्ट भागेगा, ठीक, बट स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन है तो उसका नहीं, म्यू की बात करते हैं। म्यू लेट्स से इसका 0.1 है, कितना है? 0.1। अगर म्यू 0.1 है तो एफ एस मैक्स कितना होता है? एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना है? म्यू एस एन, तो म्यू एस का वैल्यू 0.1 इंटू नॉर्मल वैल्यू कितना है? 50, यानी कि कितना है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, तो मतलब इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 5 न्यूटन। तो 5, अच्छा इसका के को ना मैं 100 कर दे रहा हूँ, ठीक है, के को 100 कर देता हूँ, ठीक, कर दे, बाद में समझ में आया क्यों किया है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा फोर्स का? 3 न्यूटन, 3 न्यूटन हो जाएगा ना, ठीक है। अब बताओ मुझे, लेफ्ट साइड में ब्लॉक को कितना फोर्स है? 3 न्यूटन। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 5, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लग जाएगा ना, तो ब्लॉक रुक जाएगा। यस और नो? समझ में आया? पक्का ना? अगर तुमने x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे रख के ब्लॉक को छोड़ दिया तो बैकवर्ड फोर्स कितना होगा? 4 न्यूटन। ये कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है बैकवर्ड, राइट। तो क्या 4 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है? हाँ लग सकता है, कदों 5 न्यूटन ना मैक्सिमम, 5 है ना मैक्सिमम, तो 4 लग सकता है। So friction will act like this and it will stop the block. Static friction, yes. Okay. हाँ? अच्छा, तनिष्का doesn't know. Okay, ठीक है। तनिष्का, you ignore this part. Okay. I will ask you to resume when you resume. अगर x को 5 सेंटीमीटर पे लाके छोड़ा, तब इस पे पीछे 5 न्यूटन और इस पे भी 5 न्यूटन, तो अब यहाँ पे भी रेस्ट पे है। But the moment you make it x equal to 6 सेंटीमीटर, अभी रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? 6, और तुम मैक्सिमम कितना लगा सकते हो फ्रिक्शन? 5, तो अब ये ब्लॉक मूव होगा। समझ में आया? मैं ये फ्रिक्शन बता रहा हूँ, ये एसएचएम नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्या? So could you explain the 6 Newton and 5 Newton thing again? Oh, I said
the friction here, do you understand friction? Yes, sir. Yes, sir. So I was saying that I made the K 100. I made the K 100 and I also introduced friction here. Mu was 0.1. If mu was 0.1, then the maximum value of friction, to understand it, is mu as n, which is 5 Newton. This is the maximum value of friction which can occur, right? If your displacement was 3 centimeter, then F is equal to minus Kx. K is 100, X is 0.03. Your force will become 3 Newton. So you have 3 Newton to the left, right? So friction will also act 3 to the right on the block. Okay. If you make X equal to 4 centimeter, the backward force is 4 Newton. And the friction will act 4 to the right. And the block will stay. If X is equal to 5, the backward force is 5. And it will just stay. The friction will be still 5 maximum value, and the box will still stay. But if you make X equal to 6 centimeter, the backward force is 6 Newton, and the maximum jo friction was 5 Newton, right? So now Okay. block has an extra 1 Newton to the left. Okay. Yes. अब देखो, second thing. Suppose ये x equal to 0 है, ठीक? तुमने x equal to थोड़ा ज्यादा x equal to x पे छोड़ दिया और x equal to x naught या x initial, ठीक? इसको छोड़ दिया, ठीक है? किस तरफ भागेगा ये ब्लॉक? लेफ्ट भागेगा, राइट? लेफ्ट भागेगा और फिर एक पॉइंट पे ये x equal to x final है, ठीक है? क्या x equal to x final? अब मुझे निकालना है वर्क डन, कितना वर्क हुआ है। इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा था? इस तरफ लग रहा है kxi, यस और नो? इस पॉइंट पे कितना लग रहा है? kxf। देखो अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो लिसन, ये लेंथ कितना है? क्या? xi। ये लेंथ कितना है? xf। तो ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? xi minus xf, बेसिकली साइन वाइन के साथ जो भी है, मतलब if xi is 8 centimeter, xf is 5 centimeter, then this thing is 3 centimeter, yes or no? इतना ही बोलना चाहता हूँ बस, ठीक? If it was a constant force, अगर एक फोर्स, ये जो स्प्रिंग फोर्स लगता है ना, ये कांस्टेंट होता, मान लो 10 न्यूटन होता और मैं वर्क पूछता, तो डायरेक्टली आंसर होता 10 न्यूटन इंटू 3 सेंटीमीटर, yes or no? हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये अगर ये स्प्रिंग फोर्स हमेशा बराबर एक ही वैल्यू लगती, 10 न्यूटन मानो लगता, इट वाज जस्ट 10 न्यूटन, देन द वर्क डन वुड बी 10 न्यूटन इनटू 3 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है? ठीक। बट द स्प्रिंग फोर्स इज नॉट कांस्टेंट एट दिस पॉइंट, इट इज हाउ मच? अरे जब ब्लॉक यहां है तो कितना स्प्रिंग फोर्स है? kxi, राइट? जब ब्लॉक यहां है तो कितना स्प्रिंग फोर्स है? kxf। चेंज हो रहा है ना, तो जब चेंज हो रहा होता है फोर्स, so what do? We integrate for the work done. Okay, so we will write dw is equal to f dx, ठीक है? dw is equal to f dx, ठीक है? And what is the force of the spring? फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है? हाँ, w is equal to minus kx dx, okay? And then for the total work done, w is equal to integral dw from xi to xf, okay? यहाँ पे इसको लिखो जरा फटाफट, write this much. ठीक है, हो गया, खत्म करूं? ओके, सो dw is equal to, Sir, can you go back Yes. for 1 second? yes, Yeah. right fast.
Now, sorry, I was in the derivation. So W you write integral dW is equal to integral minus kx dx xi to xf. So minus k comes outside. Integral x dx is very good. It is x square by 2. ठीक है? xi to xf तो ये होगा minus k x by 2 xf square minus xi square ये आएगा ना? तो इसका आ जाएगा हाफ k xi square minus xf square. ओके ठीक है? और फिर एक्चुअली ऐसा होता है कि इफ द फाइनल इज जीरो, अगर फाइनल xf इज जीरो मतलब if you're starting it from the mean, then the work done is just half kx square. Okay, ठीक है, मैंने साइन रिवर्स कर दिया है. समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ये होता है वर्क डन बाय ए स्प्रिंग कितना होता है, हाफ kx स्क्वायर होता है. क्या होता है? ठीक, बट व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मीन तब. ठीक, फाइन. ओके, अब एक कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो राइट इट लाइक दिस. अब देखो सिंपल है, एक चीज सुनो. तुमको लिखना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग रिजल्ट्स इन व्हाट. देखो यहां से यहां ऑब्जेक्ट गया, सोचो यहां से यहां गया वो, यहां पे उसका यहां पे पहले कितना था स्पीड? 0. यहां पे स्पीड 0 था, लेकिन यहां पे स्पीड 0 नहीं है ना. yes or no? At this point, so at A and B, at A the speed was 0 because you left it there, right? It was left at rest. But at B speed is not 0, so it has gained velocity and acceleration. It has gained क्या है? Velocity. Yes, speed it has gained, so therefore it has gained kinetic energy. Understood? See, if it has gained kinetic energy, that means it किसने उस पर वर्क किया था. That is a work energy theorem. यही है ना? क्या बोलता है WKE theorem? क्या बोलता है? If you do work on something, it's KE. बोल जाके वर्क एनर्जी थ्योरम बोल, जाके पढ़. बोलो. Work done by all forces. Delta K. So work done by all forces result in change in kinetic energy. यहाँ पे हाँ, यहाँ पे forces total all the forces are एक mg नीचे है, एक n ऊपर है और एक spring force ऐसे है. The displacement is to the left, so of course mg and n are not doing any work because they are mg and n are not doing any work because no idiot. Yes, the movement is in the horizontal direction. They are perpendicular to motion. So only work spring force does work, and work done by spring is equal to how much? This results in change in kinetic energy of the spring. Okay, change in K of spring. Of spring नहीं, sorry, of mass of body of mass m. Okay, तो ये mass था ना, ये वाला, ये mass ये. ठीक, फाइन. तो वर्क डन, इसको एक चीज और बोलते हैं कि वर्क डन जो होता है बाय स्प्रिंग, इट इज नेगेटिव ऑफ पीई ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू बेसिकली ऐसे लिखते हैं. इसके बाद इसको उस तरफ लेके जाते हैं, लिखते हैं डेल्टा ऑफ पीई प्लस केई is equal to, ये सेट 0 होता है. What is the meaning of this? Delta of P plus KE is 0. लिख लो, P of spring and KE of mass. Delta of PE spring plus KE mass is equal to 0. What is the meaning of this? देखो,
m is equal to 1 kg, k is equal to 100 Newton per meter. You give this an initial displacement of x is equal to 10 centimeter. Okay, तो 10 सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ मैं, 0.1 मीटर लिखता हूँ. ठीक, बताओ इस पॉइंट पे फोर्स कितना है? फोर्स कितना है जल्दी बोलो. हाँ, 10 न्यूटन नो. ठीक है, इस पॉइंट पे पी ऑफ स्प्रिंग कितना है? पी है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल. हाँ, डायरेक्शन के साथ लिख दिया ना तो माइनस, मतलब पी ऑफ स्प्रिंग कितना है? पी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर. जल्दी बताओ कितना वैल्यू है? 10, 10x. अरे एक्स, एक्स का वैल्यू दे रखा है मैंने. पक्का? 5 इंटू It's 0.5. हाफ के एक्स स्क्वायर बाई एक वैल्यू बोली, चुपचाप निकालो फटाफट. कितना वैल्यू है? So, see, half of it is 50. के का वैल्यू कितना है? 100. ठीक है. So 50 into x square is equal to x square, हाँ which is equal to 0. हाँ, So 50 into 0 is 0. 0.5 आ रहा है ना, 0.5 जूल. ठीक है, एनर्जी है ना 0.5 जूल. ठीक, लिख लिया. समझ में आई है? तो जब ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड टू 10 सेंटीमीटर, मास को 10 सेंटीमीटर पे एक्सटेंड किया, यहाँ पे एट 10 सेंटीमीटर उसका पोटेंशियल एनर्जी है 0.5 जूल. ठीक है, स्पीड कितना है उसका? स्पीड तो 0 है ना, यहाँ पे रखा हुआ है ना अभी. तो के ऑफ मास कितना है? के ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक इज इक्वल टू 0 जूल. ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है, ये ना ऐसे इसको छोड़ दोगे ना जब यहाँ पे, when you leave it, it will run like this, right? And let's say it reaches here, and the distance is how much? 5 centimeter, half the distance. Okay, so this x is equal to 5 centimeter, which is in meters is equal to 0.05 meter, right? तब फोर्स कितना लग रहा है? आधा लगेगा ना, क्योंकि एफ इज के एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स. 10 सेंटीमीटर था, 10 था, 5 सेंटीमीटर तो 5. पी ऑफ स्प्रिंग कितना है बताओ? हाफ के एक्स स्क्वायर है, निकालो जल्दी. जीरो 0.25 जूल. सही है. अब कैसे, अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक, तो निकाल सकते हो कैसे. लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये वर्क एनर्जी इसमें नहीं है क्या? इसमें है. क्या नहीं कर रखा है? तो स्प्रिंग हो गया फिर उसका. स्प्रिंग पे कुछ क्वेश्चन और कर देते हैं, देन वी लीव तनिष्का. ओके, क्या कितने बजे? उसको 6:30 to 8 बोला है. स्प्रिंग पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला तो लेकिन करना पड़ेगा. चुप. ये पे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं.
सर इससे पहले वाला Okay. ये yeah, I will yeah, this is a good example. Okay, this is a good example of spring. I will tell you this and then you can yeah, concept. Yes, right. Okay. इसका आंसर देखो, इसका जो आंसर है क्विकली बता देता हूँ। इसका आंसर ये आएगा कि यहाँ पे जो के ऑफ ब्लॉक है ना वो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एंड क्या होता है कि जो भी पी प्लस के का सम होता है हमेशा सेम होता है कभी भी। यहाँ पे सम कितना है, सम इज इक्वल टू 0.5 जूल नो, तो यहाँ भी सम कितना होना चाहिए 0.5 जूल। इसका मतलब यहाँ पे सम कितना है, सो पीई प्लस के इज इक्वल टू 0.5 जूल, ठीक। तो पीई कितनी है यहाँ पे 0.25 प्लस के इज इक्वल टू 0.25, तो के भी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 0.25। तो और इसका वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होना चाहिए, एम का वैल्यू 1 है, राइट। तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0.25 इंटू 2 विच इज 0.5, सो v इज रूट 0.5, ओके। v इज 0 रूट 0.5 मीटर पर सेकंड, ओके फाइन एवरीवन। हाँ वेलोसिटी, स्पीड ओके, ठीक। और ऐसे ही तुम मीन पोजीशन भी निकाल सकते हो कि मीन पोजीशन पे कितनी स्पीड है। वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे ये मीन पोजीशन है ना, सॉरी मीन पोजीशन है यहाँ पे द p इज 0 बिकॉज हाफ के एक्स स्क्वायर में x इज 0। अंडरस्टूड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है स्प्रिंग को समझने के लिए। क्या हुआ ये, व्हाट हैपेंड टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग, राइट दिस। सो दिस इज अ m1 एंड m2, ओके, एंड दिस इज अ स्ट्रिंग। ऊपर वाला क्या है m1, नीचे वाला सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग string, ओके st, ठीक। व्हाट इज द टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द टेंशन इन द सेकंड स्ट्रिंग, फटाफट बताओ। व्हाट इज t1 एंड व्हाट इज t2? Chi, you man, you. What is T1 and T2? 2 minutes of silence. Here is also energy minus energy plus करके देख, बात तूने सही बोली थी पर आगे सॉल्व कर। और T2 इक्वल टू M2G। जिसको ये नहीं आता है वो पहले तो एक टेक अ कप ऑफ वाटर, ट्राई टू ड्राउन इन इट। यू कांट। ये समझ में आया? हाँ ठीक। अभी क्या होगा, यहाँ देखो, इसकी जगह अगर यहाँ पे स्प्रिंग हो, पहले तो स्प्रिंग सिर्फ एक फोर्स लगाओ, एक ही लगाओ मास, ठीक है, m1, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन है ये, a spring, a mass is attached to a spring and held vertically such that m1 is at rest, such that m1 is at rest, sorry।
Okay, so see, if the spring natural length was something, right? This, do you understand that at equilibrium this will more than natural length, right? Because the block is pulling it down, right? Block पे फोर्स कितना लगता है नीचे की तरफ, mg, ऊपर की तरफ टेंशन है जो भी है, and that tension is equal to the spring force, right? So T is equal to kx, yes or no? And therefore it is equal to mg. Understood? So kx is equal to mg. By the way, what is this x? Extension from the natural length, right? So x is equal to mg by k. ये वैल्यू आती है, ठीक है? देखो, whenever you suspend the mass from a spring, the extension in the spring is equal to mg by k. ठीक है? So this is how spring balance system, spring balance, एक spring balance होता है, which tells you the weight of the object when you hang something from it. ठीक है? So how does it work is, वो ऑलरेडी पहले से ही कैलिब्रेटेड होता है और उसमें यहाँ पे वो कितना एक्सटेंड हुआ उसका रीडिंग यहाँ पे लिखा रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे mg का वैल्यू, अगर m को 2m कर दोगे तो x की वैल्यू 2mg by k हो जाएगी, तो एक्सटेंशन डबल हो जाएगा. x को m को 3 कर दोगे 3m, तो एक्सटेंशन विल 3 टाइम्स हो जाएगा. तो एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द मास एंड देयरफॉर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो हाउएवर यू, जितना तुम टांगोगे, ओके, उतना ही स्प्रिंग नीचे जाएगा. अंडरस्टूड? तो उसमें पहले से कैलिब्रेट होता है, वो पहले से 10 kg को नाप के उसमें देख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर कर देते हैं. ठीक, समझ में आया? ओके, ये अंडरस्टूड नो? ठीक, अभी नेक्स्ट लिखो. ये ऐसे लिख लिया, स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम वर्क लाइक दिस. ठीक, ओके. There is one more important thing here. See, you should understand the mechanism by which a spring operates. Spring ऐसे ऐसे होती है ना. What is spring? It is a metal piece of wire. It is a metal wire, right? Hard metallic wire which is wound like this shape, right? So when it is extended like this, what do you think has extended? Has new metal being formed? No. So what has extended? मतलब extension actually किस चीज का हुआ है? The metal का itself extension हुआ है ना? तो try to understand it कि एक part जो यहाँ पे था ना, इतना part, वो यहाँ पे इतना part बन गया है. Understood? Right? If you unwound this piece of, ये इसको unwound करोगे, है ना, और इसको अनवाउंड करोगे, अनवाउंड करके स्ट्रेट अगर करोगे, तो ये बताओ ये लेंथ बराबर आएंगे कि अलग अलग आएंगे? Same line. क्या है, क्या होगा? बराबर आएंगे, बढ़ना आएगा ना, बढ़ेगा ना. मैंने देखो अभी क्या बोला तुमको, ये जो छोटा सा पार्ट है ना, कोई एक छोटा 1 सेंटीमीटर का पार्ट लो यहाँ पे, वो 1 सेंटीमीटर का पार्ट क्या हुआ है, वो बढ़ गया, लंबा हो गया ना, तो बड़ा है ना फुल. अगर इसको अगर मैं उठा के एक लेंथ कर दूं, खोल के एक पीस ऑफ वायर, तो जो दूसरा पीस ऑफ वायर वो बड़ा होगा ना इससे. समझ में आया? हाँ भाई, यही, अगर ये L1 और ये L2 है, मतलब एक ऐसा पीस ऑफ वायर है जो नेचुरली L1 लेंथ का लंबा था, उसको तुमने खींच के L2 कर दिया, जैसे ही छोड़ोगे वापस L1 आने की कोशिश करेगा. अंडरस्टूड? एक्चुअली L1 भी नहीं आ पाएगा. क्या होगा? जैसे छोड़ोगे L2 से, जितना आगे बढ़ा था ना उतने ही पीछे जाएगा. समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक स्केल पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो 2 एटम्स थे, वो यहाँ के 2 एटम्स दूर हो गए. अंडरस्टूड? और क्योंकि एटम्स दूर हो गए, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कुछ,
देर इज अ स्वीट स्पॉट ऑफ बॉन्ड लेंथ. उससे दूर जाओगे तो भी क्या होता है, तो अट्रैक्शन होता है. उसके दूर जाओगे तो अट्रैक्शन होता है ना, at that sweet spot of bond length, right? Suppose the bond length of two H atom is, let's say, 10 farad, whatever, okay, 10 nanometer. तुम 11 करोगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होता है to each other. और 9 करोगे तो क्या होगा, रिपल्शन होता है. वही एग्जैक्टली है. अगर एक, सॉरी, तो पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो वही है कि अगर इनके दो एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ के बराबर पे है, तुम उसे लंबा करोगे तो अट्रैक्ट होंगे, पास में आएंगे, और जो छोटा करने की कोशिश करोगे तो रिपेल होंगे. इसीलिए यही इसका मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म. ठीक, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं. क्वेश्चन ये आते हैं कि मान लो आपने यहाँ पे देखो तुमने ना क्या किया, इधर देखो, ये एक स्प्रिंग स्ट्रिंग था, पहले तो स्ट्रिंग है ये वाला लेफ्ट साइड वाला, और दोनों एम है. ठीक है, ये दोनों मास एम है. ठीक, इन द लेफ्ट साइड फिगर स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, mg है, यस और नो. और राइट साइड फिगर स्प्रिंग में टेंशन कितना है, mg. दोनों में, स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों में टेंशन mg है. इफ यू आर दिस ब्लॉक, you are being pulled up by a tension of mg, and same here, yes or no. ठीक, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्ट्रिंग और स्प्रिंग में. स्ट्रिंग और स्प्रिंग, ओके, टी एंड आर. इफ यू कट दिस इंस्टेंटली, यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं उसको इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मतलब टेंशन इंस्टेंटली बिकम जीरो. हाँ, हाँ, फॉर एन इंस्टेंट. इसमें टेंशन जैसे इसको काटा, स्ट्रिंग को काट दिया आपने, टेंशन इंस्टेंटली बिकम जीरो, राइट? इंस्टेंटली टेंशन जीरो हो गया. अब एट दैट पॉइंट जैसे ही काटा, एम को लगेगा मेरे को कोई नहीं पकड़ा है, और एम स्टार्ट्स फ्री फॉलिंग. अंडरस्टूड, समझ में आया? लेकिन अगर आप स्प्रिंग को यहां से एकदम से काटोगे, ठीक है, तो स्प्रिंग एक्चुअली स्प्रिंग स्ट्रेट अवे नहीं है, उसमें ऐसे ऐसे ये मॉलिक्यूल्स थे जो स्ट्रेच थे, राइट? ऐसे स्ट्रेच थे, तो ये भी स्ट्रेच ही रहेंगे ना. At that instant they don't forget that they are stretched, right? Because there is a stretch, right? So and then they start recoiling. Understood? They start recoiling. तुमने यहां से काट दिया तो क्या हो गया, ये जो दो पार्टिकल थे ये तो दूर ही है अपने से, ये रिकॉइल करेंगे, तो इसको पता नहीं चलता कि कट गया है तुरंत. instantly it does not feel, so it will not start free fall. In fact it will move, it will stay there, not move up. देख, अभी ये मूव अप हो रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर का टेंशन कितना है, kx, नीचे का टेंशन कितना है, mg. समझ में आया? तो अगर ये मैंने बोला ये काट दिया तो भी स्प्रिंग अपनी प्रॉपर्टी भूला नहीं, अभी भी ऊपर की तरफ फोर्स कितना ही लग रहा है, kx लग रहा है, और नीचे की तरफ ये तो वहीं रहेगा ये. समझ में आया? लेकिन ये वाला क्या हुआ, जैसे ही काट दिया स्ट्रिंग अपनी प्रॉपर्टी भूल गया, तो ऊपर का टेंशन चला गया. अभी इस पे अभी इस वक्त फोर्स कितना लग रहा है, नीचे mg, बस, तो नीचे भागेगा. ये इंस्टेंटली नहीं भागेगा, थोड़ी देर बाद भागेगा. थोड़ी देर बाद इज 1 सेकेंड 2 सेकेंड, बट हाँ, इंस्टेंटली फ्री फॉल स्टार्ट नहीं होता. अंडरस्टूड? लिख लो पूरा सब कुछ जो शुरू से बोला आज, अभी लिख लो. एंड यू कैन लीव तनिष्का नाउ, ओके? आफ्टर राइटिंग दिस यू लीव, ओके? लिखो.
Sir, I have a question. Yeah, If you compress a spring, yeah. will the spring like contract or will it just go back to its original position? If you compress the spring and then leave it or not. Yeah, if you leave it. If it's an idle spring, yeah, it will go back to its original position. So it doesn't even it doesn't even contract slightly also. No, no, no. I don't understand. You suppose a spring is 100 centimeter. Okay, Oh, yeah, so length. You contract it. You make it 80 centimeter. yeah. Now you leave it. Mm. It'll do oscillation. Yeah, and it'll go back to 100 centimeters. Yeah. Okay. Ideally, yes. Consider the spring such that no matter how much extension, the deformation would happen. Yeah. This all is under, yes. So all this discussion of spring is under the constraint that मतलब ऐसा नहीं होता है. तो आगे आगे पढ़ेंगे. We will study that there is something called क्या होगा, if you extend the metal too much, it will just stay extended. Okay, it will not go back. Something called Hooke's law and all that. Okay, elasticity and all. Yes. A little irrelevant question. Say it's 100 centimeter long. Does it mean that the Yeah. Not the coil length. We mean this length is 100 centimeter. We don't mean this length is 100 centimeter. Okay, this length is 100. This length is not 100. Okay, उसका तो हमें पता ही नहीं है कितना है, क्योंकि स्प्रिंग हाँ रेडियस चेंज हो सकता है. ये कितने अलग अलग स्प्रिंग का कॉइलिंग अलग अलग, ज्यादा कॉइल कर दिया, ठीक है, तो ज्यादा कॉइल कर दिया, कम कॉइल कर दिया, बट नेचुरल लेंथ कितना है, ये इतना जो दिख रहा है सामने विजिबली. ठीक है, ओके फाइन. अभी एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं. क्वेश्चन है कि consider situation देखो, वॉल, स्प्रिंग ए, पुली. I think Tanishka you can leave. Okay, this is okay. Yes. Okay, bye. Thank you. को मास ऑफ ब्लॉक ए इज, ए का मास है, ए का मास है m एंड b का है 2m. ए का m, b का मास 2m. ठीक है, और एनीवेयर देयर इज नो फ्रिक्शन. ओके, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर. जल्दी जल्दी ये बताओ मुझे. अच्छा, क्वेश्चन है कि स्प्रिंग इज आफ्टर हाँ ए टू बी देयर इज अ स्प्रिंग, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर. जब सिस्टम यहाँ पर अभी इस वक्त जो है ना, स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, मतलब नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ. ठीक है अभी, और फिर इस सिस्टम को छोड़ दिया, अभी नेचुरल लेंथ पे अभी छोड़ दिया. किस तरफ जाएगा ये, ए किस तरफ जाएगा, ए किस तरफ जाएगा, राइट, बी किस तरफ जाएगा, हाँ ठीक. अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. देखो, द मैक्स एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग xm. सेकेंड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए when x when x is equal to xm by 2. ठीक है, when the concentration in the extension in the spring is xm by 2. और थर्ड क्वेश्चन है, a acceleration of a when x is equal to xm by 4. Sorry, acceleration of b, acceleration of b when x is equal to xm by 4.
तुम सबका कल स्कूल है क्या? नहीं है? So I think you might have आई थिंक क्या होता है, तुम फ्राइडे का नाइट है, तुमको पता नहीं होता स्कूल है कि नहीं? checked. They will send a message online. Third Saturday. You want that? ठीक है। Last Saturday. टुमारो चेक करोगे, ये क्वेश्चन करो टुमारो क्लास। कल आर एस अग्रवाल लेके आना, ठीक है? और अरियन भी अगर है तो लेके आना, ये बुक लेके आना। सोचो सिस्टम में क्या होगा। हाँ सोचो सोचो। क्या होता है जब छोड़ते तो क्या होता है? फिर धीरे धीरे क्या होगा? हाँ फिर वापस ऊपर आएगा। क्यों वापस ऊपर आएगा? हाँ वापस कभी ऊपर नहीं आएगा, तो हमेशा नीचे जाता रहेगा। तो नीचे जाते ही रहेगा। अच्छा रुक जाएगा। After the ninth extension. हाँ, रुक जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ब्लॉक को राइट फेंकते थे, राइट लाके छोड़ देते थे। तुम एक काम बताओ, एक बात बताओ यहाँ पे ना, अच्छा ठीक है इस पे बताओ, ये वाला ब्लॉक है, ठीक है? एक ब्लॉक, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वर्टिकली है कुछ 100 सेंटीमीटर, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है? तुम ऐसे लगाओगे 100 सेंटीमीटर स्प्रिंग और फिर नीचे ब्लॉक है, उस ब्लॉक को छोड़ दो, छोड़ दिया, क्या होगा फिर? ये नीचे जाएगा, फिर नीचे जाके रुक जाएगा यहाँ मैक्सिमम पे। हाँ फिर वापस ऊपर आएगा ना। ये तो होता रहेगा, नहीं होता रहेगा तो रुक जाएगा। अच्छा व्हाई इट विल स्टॉप? तो बिफोर यू डू दैट क्वेश्चन, फिर तो देखो तुम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट यही लगेगा। यार देखो ये नेचुरल लेंथ अगर इस स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ पे लटकाया तो क्या ये मीन पोजीशन है? ये मीन पोजीशन है। अच्छा जब ये नेचुरल लेंथ है तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है? क्या? अबे दिमाग खराब है क्या? नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है? हाँ 0 लगाता है। और नीचे इस पे कितना लगता है? mg। क्या अभी फोर्स बैलेंस्ड है? नहीं, तो मीन पोजीशन तो नहीं है, तो नीचे जाएगा। समझ में आया? एक पॉइंट के बाद क्या आता है, ये x नॉट नीचे चला जाता है सच दैट ऊपर वाला के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg हो जाता है। इस पॉइंट पे क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट पे फोर्स क्या है? एवरीथिंग नहीं, क्या अबे एवरीथिंग तेरे मन है एवरीथिंग तो एग्जैक्टली बोल क्या 0 है? एवरीथिंग क्या होता है? टोटल फोर्स इज 0। स्प्रिंग फोर्स 0 दिख रहा है क्या तुझे? स्प्रिंग फोर्स 0 है?
नहीं, कितना है स्प्रिंग फोर्स? के एक्स नॉट। स्प्रिंग एक्सटेंडेड है कि नहीं? नेचुरल लेंथ से एक्सटेंडेड है ना, तो ऊपर फोर्स लग रहा है के एक्स नॉट। समझ में आया? स्प्रिंग फोर्स जीरो है? नहीं। ग्रेविटी जीरो है? नहीं। नेट फोर्स जीरो है। हाँ, यहाँ पे एफ नेट जीरो है। एवरीथिंग इज जीरो। एफ नेट इज जीरो, ठीक है। एफ नेट जीरो, देयरफॉर ए इज जीरो बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। लेकिन क्या वेलोसिटी जीरो है? वेलोसिटी जीरो है कि नहीं? जीरो है। नहीं। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो क्या नीचे जाएगा? तो नीचे जाएगा। अब इस पॉइंट पे इस ब्लॉक को नीचे की तरफ वेलोसिटी है, नहीं जाएगा। वाह भाई, वाह 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 वाह, नीचे जाएगा ना। अबे यार चंपक लाल, अगर वेलोसिटी है नीचे की तरफ, स्पीड है ना नीचे, समझे? समझ बात को। स्पीड मतलब क्या होता है? चेंज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बेसिक। अगर स्पीड है तो जाएगा ना नीचे कि नहीं जाएगा? अगर इस पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड और रुकोगे तो आगे 5 मीटर भाग गया ना, तो जाएगा नीचे, नीचे जाएगा। समझ में आया? लेकिन नीचे जाते जाते क्या होगा? इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है, लेकिन थोड़ा सा जैसे नीचे गया, अभी नेट फोर्स कितना है ऊपर की तरफ? के एक्स नॉट से ऊपर ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट है नेचुरल लेंथ से वो बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा तो एफ नेट किस तरफ होगा? एफ नेट किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा ना। तो धीरे धीरे वो जो ऊपर फोर्स है एफ नेट ऊपर की तरफ होगा, तो ए नेट भी ऊपर की तरफ होगा। एमजी को बैलेंस तो कर ही दिया है पहले। अरे देख, अगर तेरे पास ऐसी वेलोसिटी है, इस राइट साइड को जाते हुए वेलोसिटी है, और तुझे रुकना है, तो तुझे क्या चाहिए? पीछे की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए। लेकिन यहीं पे नहीं रुक जाएगा, आगे जाके रुकेगा ना। अगर तू बॉल ऊपर फेंकता है वेलोसिटी से, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है, थोड़ी देर बाद जाके बॉल रुकती है ना। तो ये बॉल वैसे ही तुमने ऐसे फेंकी है मानो, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये बॉल थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, और रुक के फिर क्या होता है? यहाँ पे रुक जाएगी कहीं आगे जाके, ठीक है। समझ में आया? हाँ, जब यहाँ पे रुकेगी तब स्पीड कितनी हो गई इसकी? स्पीड जीरो हो गई। एमजी कितना लग रहा है? नीचे एमजी लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? इट इज मोर देन एमजी, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे के एक्स वॉज इक्वल टू एमजी। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ के एक्स है वो ऑफकोर्स मोर देन एक्स, इज मोर देन एक्स नॉट। यस और नो? तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स इज मोर देन के एक्स नॉट, सो देयरफॉर इट इज मोर देन एमजी। के एक्स नॉट इक्वल टू एमजी, राइट? के एक्स नॉट इक्वल टू एमजी, ये लिखा है ना के एक्स, यहाँ पे जब है ऊपर की तरफ के एक्स नॉट, नीचे की तरफ एमजी। समझ में आया? तो अभी नेट फोर्स किस तरफ है? ऊपर की तरफ। मतलब बॉडी का स्पीड जीरो है, लेकिन ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन तो क्या होगा? बॉडी विल मूव अपवर्ड्स। समझ में आया? तो ये फिर से ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो ये ना भी, ये ऑसिलेट ऐसे करेगा। समझ में आया? इसका मेन पोजीशन क्या है? ये अहिया, वहिया, बीच में, ठीक है। ये ऐसे भागेगा, ऐसे ब्लॉक, ब्लॉक व्हील ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, तो ऐसे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल से अलग कैसे है? हॉरिजॉन्टल में क्या होता था? जब मीन पोजीशन है तब स्प्रिंग फोर्स जीरो होता था, राइट? लेकिन वर्टिकल में क्या है? मीन पोजीशन पे एफ नेट जीरो है, बट के एक्स है वहां पे, के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी है। लेफ्ट साइड में के एक्स और राइट साइड में एम जी। समझ में आया? तो मीन पोजीशन में हमेशा क्या होता है? व्हाट इज जीरो? एफ नेट इज जीरो। क्या जीरो? Displacement is not necessarily zero, spring force is also not necessarily zero. Kx not kx, okay, right? It mean positions, object always oscillates about mean positions, and at mean position, why you are not writing object always oscillates about
क्या बोला मैं, क्या बोल रहा था, ऑब्जेक्ट ऑलवेज, हाँ, एंड एट मीन पोजिशंस एफ नेट इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज 0, बस, बाकी और जीरो हो भी सकता है, जरूरी जीरो हो सकता है, बाकी जीरो नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेसेसरली जीरो एंड स्प्रिंग फोर्स इज नॉट नेसेसरली जीरो. समझ में आ गया? Could you repeat the sentence? Your voice is breaking for I me. don't remember my sentence. What did you already say? In mean position, object oscillates about mean position, and at mean position, F net is equal to 0. Displacement not necessarily 0, spring force not necessarily. सुन लिया? Sir, I couldn't. At mean position, F net is equal to 0. Displacement from mean position not necessarily 0, and therefore spring force also not necessarily 0. ठीक है? अभी ये वाला क्वेश्चन कर, अभी इसमें क्या होगा देखो, इस क्वेश्चन में सिस्टम नीचे जाएगा, जाएगा, ठीक, मैक्सिमम नीचे जब कब तक जाता है, जब तक स्प्रिंग, जब तक रुक जाता है, जब रुक जाता है तब मैक्सिमम नीचे जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ऊपर आता है. समझ में आया? हाँ ठीक, अब सोचो, दोबारा करो उसको. मैक्सिमेशन कैसे निकालेंगे? हाँ कैसे निकालेंगे? क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 है, हाँ. जैसे ए पे जो फोर्सेस है वो क्या लग रहे हैं? एक तो के एक्स एम लग रहा है क्योंकि तो मैक्सिमम एक्सटेंशन बोल रहे हो. टेंशन सब कुछ रेस्ट पे है ना, है ना? भी रेस्ट पे है. हाँ देखो अभी ये रेस्ट पे है, फिर ऐसे आगे जाएगा, भागेगा भागेगा, ये दोनों भागेंगे, ये आगे ऐसे पीछे भागे ना, और इस पर इनको खींच रहा है पीछे. फिर एक पॉइंट पे क्या होगा कि ए मैक्सिमम, मतलब ये दोनों मैक्सिमम भागे होंगे और स्प्रिंग अभी मैक्सिमम एक्सटेंडेड होगा, है ना? उस पॉइंट पे ए का स्पीड कितना है? 0. बी का स्पीड कितना है? 0, है ना? और यस 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 यस, नहीं ऐसे ये है कि ऐसे करना है. इस सिस्टम पे वर्क कौन कौन कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? टेंशन, ठीक है चलो, स्प्रिंग फोर्स, mg, फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, इट्स नॉर्मल वर्क नहीं करता वैसे, परपेंडिकुलर सरफेस है ना. और टेंशन इज इंटरनल. ठीक है, देखो अगर ये ऐसे, इसको ऐसे करते हैं, ये ब्लॉक मान लो ये ना एक्सएम, मतलब एक्सएम इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है? अगर ये स्प्रिंग एक्सएम एक्सटेंड हो गई नेचुरल लेंथ से, तो ए कितना आगे गया? एक्सएम आ गया. बी कितना नीचे गया? एक्सएम. समझ में आया? बी कितना गया? एक्सएम नीचे ना. समझ में आया कि नहीं? ठीक. ए हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है ना, तो ए का पोटेंशियल एनर्जी चेंज है क्या? नहीं, नहीं ना. बी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज है कितना? mg xm. ठीक है, समझ में आया? ठीक. ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज वो ऐसे ये है कि PE प्लस KE इज कांस्टेंट. PE प्लस KE इज कांस्टेंट. इस सिस्टम का इस वक्त पे PE और KE कितना है? क्या स्प्रिंग एक्सटेंडेड है पहले शुरू में? नहीं, तो हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू 0 बिकॉज x इज 0. और क्या ब्लॉक बी कुछ हाइट पे है? हाँ कुछ हाइट, मतलब मान लो ब्लॉक बी यहाँ पहुंच गया, तो इस हाइट को 0 मान लो, तो ये कितनी हाइट पे है अभी? एक्सएम हाइट पे है ना. समझ में आया? तो ब्लॉक बी की PE है क्या? PE होती है mgh. ब्लॉक बी का PE कितना है अभी?
नहीं समझ में आया? minus mg देखो देखो देखो, इस स्टेट में स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना है? 0 है, ठीक है। ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना है? देखो पोटेंशियल ऐसे ये फॉर्मूला ये होता है, पीई प्लस के ई इज कांस्टेंट, ओके। अब पीई किस में होता है? स्प्रिंग में होता है, और एक होता है ग्रेविटी mgh, और के ई किस में होता है? सिर्फ हाफ mv स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से हो सकती है, एक तो ग्रेविटेशन हाइट की वजह से, और दूसरा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इस पॉइंट पे स्प्रिंग में एक्सटेंशन है क्या? नहीं है, 0। तो पी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो गया? 0। क्या ब्लॉक में स्पीड है क्या? ब्लॉक में स्पीड है? नहीं। तो ब्लॉक की के क्या हो गई? 0, ठीक है। अच्छा, मान लो कि चलो ये वाला हाइट को तुम 0 मान लो, इस हाइट को 0 मान लो, तो फिर ब्लॉक ए की कुछ हाइट है ना, किसी हाइट को तुमको 0 मानना पड़ेगा। तो इस हाइट को 0 मान लो, ब्लॉक ए की हाइट कितनी मान लो, ये हाइट ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस d है, तो ब्लॉक ए की हाइट कितनी है? d, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh होती है, mgd है। समझ में आया? तो जब तुम p प्लस के लिखोगे तो उसमें एक ही टर्म आएगी, क्या आएगी? mg और d, यस और नो? समझ में आया? क्योंकि क्या क्या आना चाहिए था? p ऑफ द स्प्रिंग आना चाहिए था, जो नहीं आया बिकॉज इट इज अनएक्सटेंडेड, ठीक। k ऑफ द ब्लॉक्स आने चाहिए थे, हाफ mv, हाफ mav स्क्वायर प्लस हाफ mbv स्क्वायर, जो नहीं है बिकॉज द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, ठीक। और क्या आना चाहिए था? ग्रेविटी आनी चाहिए थी। ये वाली हाइट को 0 मान लिया तो b का ग्रेविटी नहीं आया, लेकिन इसका आ गया, ठीक है। समझ में आया? दिस इज इक्वल टू, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा ना, ये ऐसे ऐसे xm आगे जाएगा, ठीक है, ब्लॉक ए इधर होगा, ब्लॉक बी xm नीचे होगा, ठीक है। तब देखो जब मैक्सिमम एक्सटेंडेड है तो क्या स्प्रिंग का पी 0 है? मैक्सिमम एक्सटेंशन xm है, तो एक्सटेंशन है, तो स्प्रिंग कितना स्प्रिंग का पी कितना हुआ? पी का फॉर्मूला क्या था? पी का फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग हाफ के स्क्वायर, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, ये सर नो, प्लस ग्रेविटेशनल देखना है, ग्रेविटेशनल। ये हाइट 0 था, ये हाइट 0 था, ब्लॉक के अभी भी इसी हाइट पे है तो हॉरिजॉन्टली ना, तो उसके लिए mgd लिखेंगे, ये सर नो, ठीक। प्लस ब्लॉक बी जो है कितना नीचे गया है? ब्लॉक बी कहाँ है? यहाँ पर है ना, कितना नीचे गया? तुम लोग ने बोला तो अभी कितना नीचे गया। अरे स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ, तो ब्लॉक भी कितना नीचे गया? xm। अगर ये हाइट 0 है तो ये हाइट कितनी है? -xm, तो 2mg विद माइनस xm, ये सर नो, ठीक। प्लस के आनी चाहिए दोनों की, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन के ऑफ बोथ ऑफ देम इज अगेन 0। रुक गया ना सिस्टम, 0। mgd जाएगा क्या? देखो ये हाफ के एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg xm आएगा, हाफ के एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg xm। समझ में आएगी नहीं? लिख दो उसको, निकाल लो कितना आएगा। xm जाएगा, xm विल बी 4mg by k, आगे लिख लो 4mg by k, is correct, okay। Yeah, this is it, okay। You do the next two at home, okay। Have you understood? The concept is the PE plus KE is equal to constant, okay। Potential energy is due to spring and due to gravity। स्प्रिंग का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटी का फॉर्मूला है mgh, ठीक है। जब शुरू हुआ तब p is 0, k is 0, बस ग्रेविटी का एक टर्म आएगा which is, तुम हाइट जहां पे ले लो, तुमने b को हाइट 0 ले लिया तो b का ग्रेविटी नहीं आया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एक आ गया mgd। जब वो ऐसे आगे बढ़ गया पूरा xm डिस्टेंस पे सिस्टम, तो a तो हॉरिजॉन्टली xm मूव हुआ है, b जो है वो वर्टिकली xm डाउन गया है। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a स्टिल mgd,
लेकिन B का पोटेंशियल एनर्जी इज 2m, इसका मास 2m है, mgh है ना, तो मास 2m इंटू g इंटू उसकी हाइट कितनी है माइनस xm, तो माइनस 2g माइनस xm, और दोनों का k ही 0 क्योंकि रुक गए दोनों मोमेंटली उस टाइम पे, ठीक है। और बस एक हाफ, और उस टाइम पे स्प्रिंग बढ़ गया ना x से, तो स्प्रिंग का p कितना आ गया हाफ k xm स्क्वायर, mgd कट गया दोनों साइड से, हाफ k xm स्क्वायर इक्वल टू 2mg xm आएगा, और xm में आएगा 4mg by k, ठीक है। बस अब चार कल आना है, ठीक है। ये बुक लेके आना, अगर ये बुक नहीं है तो इसके पेज 1 to 10 की फोटो लेके आना, इसके एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं, ये वाला है, इसका फोटो लेके आना, ठीक है अपने पास, यहाँ के भी फोटो ले सकते हो, थोड़ा जल्दी आना, ठीक है। जाओ, बाय बाय।